Hello everyone, welcome to Biozone Advanced Biology. So today's topic is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and this topic falls in both class 9th and class 11th. So this is the basic of cell chapter. We need to know the difference between plant cell and the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. Hello everyone, welcome to Biozone Advanced Biology. Today we will see the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. But according to class 9th, you need to clear your basics. If I talk about prokaryotic cell, so prokaryotic cell में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक सेल में हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, मतलब कि अगर बैक्टीरिया की बात चल रही है तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है. If I talk about eukaryotic cell, तो eukaryotic cell में I talk about both plant cell and animal cell. बहुत बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, ये बेसिक क्लियर नहीं होते हैं. Both plant cell and animal cells are the eukaryotic cell, whereas the bacteria is the prokaryotic cell. अब डिफरेंस या कंफ्यूजन कहाँ पर होती है? इन दोनों में कंफ्यूजन होती है. The difference is plant cell contains the cell wall and animal cell do not contain the cell wall. Its outer membrane is cell membrane, or we can say it is the plasma membrane. On the other hand, plant has the cell wall as outer membrane. If I talk about prokaryotic, that means you will understand naturally that it's bacteria, and if I say eukaryotic cell, then plant cell and animal cell both. Here I have taken an example of animal cell, and here in prokaryotic cell I have taken an example of bacterial cell. We will see the differences between prokaryotic and eukaryotic now. Let's move on to the differences. You can see the images here. This image is of prokaryotic bacteria. First of all, let's go through the image. This is the outer cell wall of prokaryotic cell, and if I talk about bacteria, तो यहाँ पर ये cell wall किससे बनी होती है? It is made up of peptidoglycan. Then on the outer side of cell wall क्या प्रेजेंट होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है, या यहाँ पर ग्लाइकोकेलिक्स लेयर होती है जो कि स्मूथ और रफ. ये कैप्सूल जो होता है वो दोनों लेयर से बना होता है, स्मूथ और रफ से. सेल वॉल के बाहर की तरफ होता है कैप्सूल. क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि बैक्टीरिया को रफ सरफेसेस पे या डिफरेंट सरफेसेस पे अपने आप को अटैच करना होता है. दैट्स व्हाई कैप्सूल इज प्रेजेंट, एंड ऑल्सो दिस कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द हार्श कंडीशंस, फ्रॉम सॉल्टी कंडीशंस, फ्रॉम लो टेम्परेचर्स एंड हाई टेम्परेचर. सो इट kind of provides the protection to the bacteria. Then comes the plasma membrane. So outermost is cell wall, but in some bacteria capsule is found, glycocalyx is found, these smooth layers are found. Then comes the plasma membrane. After that, third one is cytoplasm, which is very important. Then ribosome. I'll star mark this. We will see it in the differences. Ribosome is the only organelle which is present in the prokaryotic cell. On the other hand, eukaryotic cell में भी राइबोसोम्स हैं, बट और कोई ऑर्गेनेली बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है. देन इट इज द न्यूक्लियोइड. हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे. लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. देन कम्स द प्लाज्मिड. अब इसके पास ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है. दिस वाज द फिफ्थ वन एंड दिस इज द सिक्स्थ वन. प्लाज्मिड को भी हम स्टार मार्क करेंगे. प्लाज्मिड क्या होता है? दिस इज द सर्कुलर डीएनए which is, or the extra chromosomal, this is the extra chromosomal structural circular DNA which is found in the prokaryotic cell. ये इसके पास एक एडवांटेज है apart from the nucleus, apart from the nucleoid. Then it also have the pili. Pili helps in the attachment of bacteria or helps in the conjugation. Conjugation is a type of reproduction in bacteria. तो वहां पर क्या एक्सटेंड कर लेता है? वो पिल्लाई एक्सटेंड कर लेता है. देन इट हैज द फ्लैजिलम. सो फ्लैजिलम एंड पिल्लाई यू कैन सी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही आउटग्रोथ हैं, मेम्ब्रेन से निकलती हैं.
और फ्लैजिलम किस में हेल्प करती हैं? दिस इज द 8th पार्ट। ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, स्पेशली बैक्टीरिया की। पिल्लाई किस में हेल्प करती हैं? कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, राइट। सो यहां से वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया क्या ट्रांसफर होता है? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है with the help of this pili or the conjugation tube. Then in eukaryotic cell we have the, if I'm talking about animal cell, तो हमारे पास outermost layer क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहीं पर प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल में outermost मेम्ब्रेन क्या होती? सेल वॉल होती। और प्लांट सेल में आउटर सेल वॉल किससे बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। लेट मी इरेज दिस one. So in plants, the outer cell wall is made up of cellulose. I'll write it here especially. In plant cell, it is made up of cellulose. In bacteria, it is made up of peptidoglycan. In bacteria, outer cell wall is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan. In plants, it is made up of cellulose. And fungus or the fungi is also a eukaryotic cell. इसमें किससे बनी होती है ये? It is made up of chitin. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है यूटी या पीटी एग्जाम्स में। बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट सेल्यूलोज, फंगस में काइटिन की बनी होती है। अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक में एनिमल का एग्जाम्पल पढ़ें तो आउटर मोस्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म विच इज ऑल्सो सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। देन कम्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। इट विल रेगुलेट ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसके बिना सेल काम नहीं करेगा। अब न्यूक्लियस के भी फर्दर पार्ट्स हैं जब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देन वी विल कवर अप द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ क्या प्रेजेंट होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका बहुत सारा बेसिक से वन वर्ड जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे इन डिफरेंसेस से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? ये बनाती है लिपिड्स। इसके पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और रफ के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देन दीज आर द राइबोसोम्स। ये स्कैटर्ड भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आप यहाँ पर देख सकते हैं अटैच्ड भी हो सकते हैं। आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस ये सारा जो सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड द वेसिकल्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। जब मेम्ब्रेन्स अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि ईआर की, गोल्गी बॉडीज की, लाइसोसोम इवन एंड द वेसिकल्स, दे ट्रांसपोर्ट द substances to plasma membrane or outside the cell, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में दोनों में मिलेगा। बट इन प्लांट सेल्स अपार्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया व्हाट इज फाउंड? क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड जो कि एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। लाइसोसोम दोनों में मिलेगा, प्लांट और एनिमल, बट यहां पर आपने देखा कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं थी अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। नाउ पेरोक्सिसोम इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड दिस साइटोस्केलेटन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल। सो यू नीड टू स्टार मार्क दिस एज वेल। अब यहां पर आता है ऐसा है क्या जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंशिएट करता है? प्रोकैरियोटिक सेल आपको बताया हुआ है अर्लियर वीडियोस में भी दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव मतलब पुराना सेल। यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अब आपने यहाँ पर देखा ये जो न्यूक्लियस है इसकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये
आउटर मेम्ब्रेन और द बाउंड्री प्रेजेंट है न्यूक्लियस की, जिसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियोलस है और इसके आसपास अगल बगल में क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है, इसके न्यूक्लियस के पास कोई भी एक वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती और साइटोप्लाज्म में ये स्कैटर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ना कि न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे और सेग्रीगेट करे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, नॉट द न्यूक्लियस। यहां से भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। देन एज वी मूव ऑन to the specific differences of prokaryotic and eukaryotic cell, let's begin with the differences. First of all is the size of the cell. Size of cell. Prokaryotic cell का size, और जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, that is typically 0.1. We start from 0.1. It can be up to 2.0 or it can be up to 5 micron meter. On the other hand, eukaryotic cell typically ranges from 10 to 100 micron meter. तो यूकैरियोटिक सेल बाद में इवॉल्व हुआ था प्रोकैरियोटिक सेल से, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल वो स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट कम्स द, अगर हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में आएगा यहाँ पर बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में हम किसका एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में हम किसके एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ। अब यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या है, ये दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। देन कम्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपको ऊपर डायग्राम में बता चुकी हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, विच इज नॉट अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक के पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं या नहीं होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो आपने यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देखा, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज क्या थी, एब्सेंट थी। इफ यू कैन राइट इट हियर एज वेल, मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent in prokaryotic cell. On the other hand, membrane bound organelles are present. आप एग्जाम्पल इसके साथ में दे सकते हैं, जैसे कि ER, mitochondria, along with that chloroplast and several other organelles which are present in the eukaryotic cell. Then comes the presence of flagella. हमने flagella कहाँ देखा था, हमने flagella prokaryotic cell में देखा था। तो flagella present होता है prokaryotic cell में, और किसका बना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। किससे बना होता है फ्लैजिला, फ्लैजिलिन प्रोटीन से प्रेजेंट बना होता है, और ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मूवमेंट किस तरीके से होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है बैक्टीरिया की मूवमेंट, एंड क्लॉकवाइज, दो तरीके की मूवमेंट होती है बैक्टीरिया में। जब वो अगर उसको रन करना है या टम्बल करना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मूवमेंट होती है बैक्टीरिया की। देन फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल में अगर प्रेजेंट होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्लांट सेल और एनिमल सेल, मैं फंगस सेल की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे तो कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग हियर, अगर प्रेजेंट होंगे तो कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और इन द एनिमल सेल्स दे विल बी एब्सेंट। देन इफ वी टॉक अबाउट द सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आपने देखा बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी, तो यूजुअली इट इज प्रेजेंट, एंड किससे बनी है वो भी हमने देखा, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ा था बैक्टीरिया का। और यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगी तो कहाँ प्रेजेंट होगी, ओनली प्रेजेंट इन
plant cell and fungus और द फंजाई, प्लांट एंड फंजाई, इन दो में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। प्लांट में किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से बनी होगी, और फंगस में किससे बनी होगी? इट विल बी मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसे प्रेजेंट होगा? तो साइटोप्लाज्म में कोई भी साइटोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोस्केलेटन से मेरा मतलब क्या है? जैसे इफ आई टॉक अबाउट अस ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे अंदर एक स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट कराता है। ऐसा कोई साइटोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देन कम्स द राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर होंगे, और इन द यूकैरियोटिक सेल दे विल बी लार्जर इन साइज। देन कम्स द सेल डिवीजन। तो यहाँ पर सेल डिवीजन कैसे होगी प्रोकैरियोटिक सेल में? अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड करना है तो इट मोस्टली डिवाइड्स बाय बाइनरी फ्यूजन। जो ये है बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता है। ऑन द अदर हैंड these cells divide with the help of mitosis। यूकैरियोटिक सेल बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करते हैं? माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। फिर आता है क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, एंड इन यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट मोर देन वन, और यहाँ पे लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा क्रोमोसोम? लीनियर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया क्रोमोसोम। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको याद रखना है, पी से पी याद रह जाएगा, कि इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, दैट इज प्लाज्मिड, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारी रिसर्च के अंडर यूज किया जाता है। इसका presence of plasmid is a characteristic feature of bacteria and which is used in the research nowadays. I hope this is clear to you all. These are the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. मैंने ये एक difference यहाँ पर लिखा है because of the lack of space. Now this should be clear to you all कि differences क्या हैं prokaryotic cell और eukaryotic cell में, और यहाँ पर इसके हमने diagram के थ्रू इसको देखा। और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन वॉच मोर वीडियोज रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स ऑफ क्लास 9, 10th, 11th and 12th of biology, and we will soon come up with other subjects as well. Thank you so much and keep watching, keep learning.